Glossous, Seccoglossus. Subphylum Echinodermata. Phylum Hemichordata, Balanoglossus, Seccoglossus, Phylum Chordata, Subphylum Urochordata, Ascidia, Salpa, Doliolum, Subphylum Cephalochordata, Branchiostoma, Lamphioxus or Lancelet, Subphylum Vertebrata, class Cyclostomata, Petromyzin lamprey, Magazine hackfish, class Conrictice, Scalodon dogfish, Prestis saw fish, Cercodon great pet shark, Tegron stingray, Torpedo electric ray, class Ostictice. Class Ostictice, marine fishes, Exocritus, flying fish, Hippocampus sea, horse, freshwater fishes, Lobio roe, hook cat, Laclarius magur, aquarium fishes, betta fighting fish, Pterophyllum, angelfish, class Amphibia, Buphotodrana frogs, Salamandrus, Hyla tree, frogs, Salamander, Ichthyophis, limbless Amphibia, class Reptilia, Chilon turtle, Tustido tortoise, Chameleon lizard, Calitus garden lizard, Crocodilus crocodile, alligator, class poisonous snakes, Naja cobra, Bangarus crate, Vipera viper, class aves, Corvus crow, Columba pigeon, Ceticula parrot, Struthio ostrich, Pavo peacock, Aptodictis penguin, Nephron vulture, class Mammalia, Oviparous mammal, Ornithorhynchus platypus, Viviparous mammal, Macropus kangaroo, Pteropus flying fox, Camelus camel, Macaque monkey, Rattus rat, Canis dog, Pellis cat, Elephas elephant, Panthrodicus tiger, Pantherlia lion. Thank you. बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। वाह वैष्णवी, कहाँ से हो बेटा आप? औरंगाबाद सर। ओके, और स्कूल आपका? सेंट फ्रांसिस डिसल्स हाई स्कूल औरंगाबाद। कौन सा? सेंट फ्रांसिस डिसल्स हाई स्कूल। ओके, बहुत ही बढ़िया। फास्ट और एक्यूरेसी के साथ साथ उन्होंने एनिमल किंगडम के पूरे एग्जाम्पल रिवाइज कर दिए हैं। सब लोगों के टिप ऑफ द टंग पे आ गए वो। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इस टॉपिक का। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन। नाउ हम बात करें दोस्तों, दैट इज बहुत ही बढ़िया। ओके, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। यस राहुल, कॉम्पिटिशनच आहे। यस, नाउ प्लीज पे अटेंशन। ओके, चलो चलो चलो, अभी बस बस, नाउ प्लीज पे अटेंशन। सो दोस्तों, वी डिस्कस दैट ये जो फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा जो है, फाइलम कॉर्डेटा, इसमें क्या होता है? फाइलम कॉर्डेटा इट हैज बेसिकली 3 सब फाइलम। इसमें 3 सब फाइलम है। इसमें 3 सब फाइलम है, दैट इज यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। याद रखो, 3 सब फाइलम है। एक है दोस्तों दैट इज यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। दूसरा है सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। और तीसरा है दोस्तों दैट इज वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। नाउ ये 3 नाम क्यों है? यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। ये 3 अलग अलग नाम इसलिए दोस्तों, यूरोकॉर्डेटा, notochord is present only the tail of larva. Notochord is present only in tail of larva, tail of larva. Okay, tail of larva, and that notochord is absent in adult. Notochord दोस्तों, notochord disappears. Okay, disappears in adult or absent in adult. Rather than using the term disappear, I will use the term absent in adult, क्योंकि ये retrogressive metamorphosis है। Simple. ये है यूरोकॉर्डेटा, also called as a tunicata, because their body is covered by a tunicin. In cephalochordate दोस्तों, notochord is present from head to tail region. Notochord is present from head to tail region. Present from head to tail region. हेड टू टेल रीजन, सर से पांव तक नोटोकॉर्ड है।
एंड दोस्तों इसमें परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, वो वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होता है। नोटोकॉर्ड इज persistent, नोटोकॉर्ड इज persistent दोस्तों throughout the life, नोटोकॉर्ड इज persistent throughout the life, okay, of an adult, throughout the life of an adult, adult के पूरे लाइफ में ये persistent रहेगा। यहाँ पे जो है वर्टिबल कॉलम में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट, नोटोकॉर्ड जो है दोस्तों, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट in embryonic stage of all vertebrate, in embryonic stage of all vertebrate, but दोस्तों in adult it is converted into either cartilaginous or bony vertebral column। MCQ क्या बोला मैं, in adult दोस्तों it is converted into, जब notochord is converted into दोस्तों, converted into either cartilaginous or bony, either cartilaginous or bony, either cartilaginous or bony, that is either cartilaginous or bony vertebral column, either cartilaginous or bony vertebral column, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ दोस्तों फाइलम को, ये है फाइलम कॉर्डेटा और उसके 3 सब फाइलम और बेस्ड ऑन दोस्तों these 3 सब फाइलम based on fate of notochord, नोटोकॉर्ड का क्या होने वाला है, बेस्ड ऑन फेट ऑफ नोटोकॉर्ड, इसके ऊपर 3 सब फाइलम है। कल का जो मैंने क्लासिफिकेशन किया था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल का जो क्लासिफिकेशन हमने देखा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस आई नो दैट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कल तो फिर यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, नाउ यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा टुगेदर दे कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेटा, इनको क्या बोला जाता है, टुगेदर उनको क्या बोला जाता है, टुगेदर दे आर नेम्ड एज दोस्तों, याद रखो, टुगेदर दे कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेटा, ओके, टुगेदर नेम्ड एज प्रोटोकॉर्डेटा। नाउ इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों अक्रैनिएटा, जिनमें क्रैनियम एब्सेंट है, अक्रैनिएटा, ओके, अक्रैनिएटा याद रखो। नाउ वर्टिब्रेटा इज आल्सो कॉल्ड एज दोस्तों, इनका नाम है यूकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम क्या है, यूकॉर्डेटा, ये कभी मत भूलो, इनका दूसरा नाम है दोस्तों यूकॉर्डेटा, और इन्हीं को कहा जाता है क्रैनिएटा, इन्हीं को बोला जाएगा क्रैनिएटा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इन्हीं को बोला जाएगा क्रैनिएटा, ओके। फेट ऑफ नोटोकॉर्ड, तो मैंने क्या लिखा है, फेट ऑफ नोटोकॉर्डेटा हो गया क्या, फेट ऑफ नोटोकॉर्ड, फेट ऑफ नोटोकॉर्ड, ये क्लियर है, इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते दोस्तों, कल ही बात की है, ओके। यूरोकॉर्डेटा के बारे में भी हमने बोला है कि क्या है यूरोकॉर्डेटा। अभी बात कर दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ सेफेलोकॉर्डेटा, और फिर दैट इज वर्टिब्रेटा के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट द सेफेलोकॉर्डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर अभी तो बोले हैं, फिर भी दोस्तों ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिएक्सिस और लांसलेट उसका एग्जांपल है। दैट इज नंबर 1, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, नोटोकॉर्ड present from head to tail region, present from head to tail region, number 1. Number 2 point, or in यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड is present only in the tail of larva। यहाँ पे दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज नोटोकॉर्ड इज persistent throughout the life, नोटोकॉर्ड इज persistent का मतलब होता है कंसिस्टेंट, बदलता नहीं है, नोटोकॉर्ड इज कंसिस्टेंट और persistent throughout the life, वही है ना, इसका वर्टिबल कॉलम होगा ना ये गायब होगा,
throughout the life दोस्तों, that is cephalochordata मध्ये notochord is persistent throughout the life. Now इनमें there is a closed circulatory system होती है. तो यूरोकॉर्डेटा में क्या है, नोटोकॉर्ड इज डिसअपियर और absent in adult. यूरोकॉर्डेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पे दोस्तों क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. यूरोकॉर्डेटा में रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, मतलब देयर इज अ मोर डेवलप्ड लार्वा कन्वर्टेड इनटू लेस डेवलप्ड अडल्ट. यहाँ पे एज यूजुअल प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा. कैसा मेटामॉर्फोसिस है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मतलब नॉर्मल वाला. लेस डेवलप्ड लार्वा कन्वर्ट इनटू मोर डेवलप्ड अडल्ट. फिर दोस्तों एक्सक्रिएशन जो होता है इसमें, एक्सक्रिएशन इज बाय, याद रखो एक्सक्रिएशन इज बाय दोस्तों, दैट इज न्यूरल ग्लैंड. एक्सक्रिएशन इज बाय इन प्रोटोनेफ्रेडिया, इज बाय प्रोटोनेफ्रेडिया. Now excretion in case of यूरोकॉर्डेटा it is दोस्तों याद रखो it is by neural gland. यहाँ पे प्रोटोनेफ्रेडिया है. Now यूरोकॉर्डेटा are also exclusively marine and these are also exclusively marine. ये भी exclusively marine होते हैं. कौन, cephalochordate. इसके एग्जैक्ट अपोजिट यूरोकॉर्डेट का होगा. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली द टेल ऑफ लार्वा. नोटोकॉर्ड इज absent in adult. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, रिट्रोग्रेटिव मेटामॉर्फोसिस, एक्सक्रीशन बाय न्यूरल ग्लैंड, एंड मगर वो भी एक्सक्लूसिवली मराइन है. सेफेलोकॉर्डेट एग्जांपल ब्रांकियोक्सिस और लांसलेट. ब्रांकियोक्सिस और ब्रांकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लांसलेट. ब्रांकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लांसलेट. इज दैट क्लियर? ओके ओके. इन दोनों में दोस्तों क्रैनियम इज absent. ये हो गए दो. नाउ सबफाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में बात करते हैं. सबफाइलम वर्टिब्रेटा याद रखो, सबफाइलम वर्टिब्रेटा. सबफाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा इज सबफाइलम. आल्सो कॉल्ड है दोस्तों, इसी का दूसरा नाम है, इसे कहते हैं क्रैनिएटा क्योंकि ब्रेन बॉक्स इज प्रेजेंट, और इसी का दूसरा नाम है दैट इज अ यूकॉर्डेटा. इसी का दूसरा नाम होता है यूकॉर्डेटा. वर्टिब्रेटा का ही दूसरा नाम है क्रैनिएटा, यूकॉर्डेटा. ये आपको पता होना चाहिए. नाउ दोस्तों यहाँ पे क्या है, मैंने बोल दिया है, पहले लिख दिया था कि यहाँ पे क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. नंबर वन, ये सबको पता है. एंड इट इज रिप्लेस्ड, okay, in adult that notochord is replaced into दोस्तों either cartilaginous or bony vertebral column. ये होता है. okay, and then replace to दोस्तों, then replace to either cartilaginous or bony vertebral column, either cartilaginous or bony vertebral column. Cartilaginous means vertebral column is made up of cartilage. Cartilaginous और bony या फिर बोन से बनता है. हमारे इसमें बोन से होता है. bony vertebral column. vertebral column म्हणजे पाठीचा मना, कणा, vertebral column. ओके, ये जो रीढ़ की हड्डी है vertebral column. Notochord is present in embryonic stage and then replaced to either cartilaginous and bony vertebral column. ये फीचर है, वर्टिब्रेट का फीचर दोस्तों, याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है. So brain is enclosed in a cranial cavity. Brain is enclosed in a brain box known as cranium. Brain box, that is cranium. उस brain box का नाम क्या है, cranium. So also known as craniata. इसलिए इनका नाम क्या है, craniata. कौन, ये जो वर्टिब्रेट है. नाउ कुछ यूनिक फीचर है दोस्तों वर्टिब्रेट के, कुछ यूनिक फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट. यूनिक फीचर्स है, फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट. 3 इंपॉर्टेंट फीचर दोस्तों, दैट इज नंबर 1 वेंट्रल मस्कुलर एंड चेम्बर्ड हार्ट. वेंट्रल
muscular and chambered heart. Muscular and ventral muscular and chambered heart होता है, chambered heart. Either it is दोस्तों 3, 2 और 4 chambered. Chambered heart है, that is 2 है, 3 है या फिर 4 chambered होगा, depending on the type of class vertebra में. Ventral muscular chambered heart ये feature है. Number 2 दोस्तों, फिर that is presence of kidney for excretion and osmoregulation. Kidney for excretion and osmoregulation. This is an important organ. ये भी vertebrate का feature है. Kidney for excretion and osmoregulation. Osmoregulation के लिए means regulation of osmolarity, regulation of acid and ion balance or ions or acid and base balance maintain करने के लिए, ions and water balance maintain करने के लिए kidney है. Number 3 दोस्तों, that is the presence of paired appendages. Paired appendages means appendages, that is appendages means limbs या फिर fins in the form of दोस्तों, in the form of, that is in the form of, that is fins in Pisces, in the form of fin in Pisces and in the form of limbs in Tetrapoda. Limbs in Tetrapoda. याद रखो, paired appendages in the form of fins or limbs. तो ये कुछ फीचर्स है वर्टिब्रेट के. तो इसलिए एक स्टेटमेंट है दोस्तों, all vertebrate are chordate but all chordate are not vertebrate. All vertebrates are chordate. All vertebrates are chordates क्योंकि उनमें सभी में नोटोकॉर्ड है. But all chordates are not vertebrate because some chordate can be protochordate. All chordates are not vertebrate because some are urochordate, some are cephalochordate. ये भी याद रखो. Vertebrates ये important है. All vertebrates are chordate but all chordate are not vertebrate. Okay, all vertebrate are chordate but all chordate are not vertebrate. ठीक है, चला. नेहा सर यू आर रिटर्न टू टाइम्स म्हणजे ओके, क्या 2 टाइम्स लिखा मैंने? ये 2 दिख रहा है आपको, ये 2 टाइम दिख रहा है, ये 3 है, ये आपको दिख रहा 2 है, एक्चुअली वो है 3 अभी. ठीक है, 2, 3, 4 चेम्बर्ड हार्ट. ये वर्टिब्रेट का फीचर है ना. वर्टिब्रेट का फीचर है तो वर्टिब्रेट के ऊपर फोकस करते दोस्तों. मान लो ये है क्लास सब फाइलम वर्टिब्रेटा. नाउ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, इसमें 2 इंपॉर्टेंट डिवीजन है, ये हमारे सिलेबस में दिया है. इसमें 2 इंपॉर्टेंट डिवीजन है दोस्तों, दैट इज अग्न्याथा एंड अग्न्याथा. अग्न्याथा एंड ज्ञाथा. एक है दैट इज अग्न्याथा, एक है क्या अग्न्याथा, और दूसरा दोस्तों दैट इज अग्न्याथोस्टोमाटा. दूसरा क्या है? दैट इज अग्न्याथोस्टोमाटा. ज्ञाथोस्टोमाटा, अग्न्याथा और ज्ञाथोस्टोमाटा. ना इस अग्न्याथा में ये क्या है दोस्तों? ये 2 डिवीजन है. ये 2 डिवीजन है, मत भूलो. ये 2 क्या है? ये डिवीजन है. क्वेश्चन भी आएंगे ये क्या है. ये दोनों दोस्तों डिवीजन है. ना इनमें इस अग्न्याथा में एक क्लास है दोस्तों, जिस क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमाटा. जिस क्लास का अग्न्याथा के क्या फीचर है, व्हाट आर द फीचर ऑफ अग्न्याथा, मैं बाद में बोलूंगा. अग्न्याथा का एक क्लास है जिसका नाम है दोस्तों साइक्लोस्टोमाटा. क्या क्लास है? क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमाटा. साइक्लो म्हणजे सर्कुलर माउथ है, साइक्लोस्टोमाटा. फिनिश. नाउ ये जो ज्ञाथा है दोस्तों, ये जो ज्ञाथोस्टोमाटा है, इसके 2 सुपर क्लासेस होते हैं. एक होगा पाइसेस, दूसरा होगा दोस्तों टेट्रापोडा. ओके, 2 सुपर क्लास है. कैसे क्लास है? सुपर क्लास कल ही लिख के दिया था. 2 सुपर क्लास है. नंबर 1 एक है दोस्तों दैट इज पाइसेस. पाइसेस मींस ट्रू फिशेस. पाइसेस मींस ट्रू फिशेस. पाइसेस म्हणजे ट्रू फिशेस.
पाइसेस, और दूसरा है टेट्रापोडा। दूसरा क्या है? टेट्रापोडा। 4, these are the animal with 4 pairs of टेट्रापोडा। 4 पैर है उनको, टेट्रापोडा 4 पैर है, टेट्रापोडा और पाइसेस। फिर इनमें क्लास, ये 2 सुपर क्लास है, फिर इनमें क्लास दोस्तों। ओके, फिर इनमें इस पाइसेस में फिर 2 क्लास है, दैट इज कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस। कौन से क्लास है? कॉन्ड्रिक थाइस म्हणजे कार्टिलेजिनस फिशेस, कॉन्ड्रिक थाइस, कॉन्ड्रिक थाइस म्हणजे कार्टिलेजिनस फिशेस, कॉन्ड्रिक थाइस म्हणजे कार्टिलेजिनस फिशेस, एंड ऑस्टिक थाइस म्हणजे बोनी फिशेस। ऑस्टिक थाइस मतलब बोनी फिशेस, याद रखो। दैट इज कॉन्ड्रिक थाइस एंड that is ostic thighs, chondric thighs and ostic thighs, chondric thighs and ostic thighs। और टेट्रापोडा में फिर से 4 क्लासेस, that is amphibians, number 1, number 2 that is reptiles, birds and mammals, amphibians, reptile, birds and mammals। ओके, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल। मान ये है पूरा, आपको पता होना चाहिए। कॉन्ड्रिक थाइस मींस कार्टिलेजिनस फिशेस, और ऑस्टिक थाइस मींस कार्टिलेजिनस मींस ऐसे फिशेस जो कार्टिलेज से बना है उनका स्केलेटन, कार्टिलेजिनस फिशेस जिनका स्केलेटन कार्टिलेज से बना है। ओके, और ऑस्टिक, ऑस्टिन होता है उनमें जिनका स्केलेटन, बोनी फिशेस होते हैं ये जिनका स्केलेटन दोस्तों बोन से बना है, एंडोस्केलेटन। और ये जो पाइसेस है, पाइसेस का फीचर है दैट इज प्रेजेंस ऑफ दोस्तों द बियर्स, ये आपको पता होना चाहिए। द बियर्स फिन्स, द बियर फिन्स which help in swimming, that is pairs of fins। एक्चुअल देखा जाए तो खाली fins नहीं, pairs of fins, pair of fins। और दोस्तों दे बियर pair of limbs, पाए, पैर, that is tetrapoda। ये आपको पता होना चाहिए। ग्न्याथा म्हणजे जॉ, तो ग्न्याथा मीन्स दीज आर दोस्तों जॉलेस वर्टिब्रेट, इन्हें कहा जाता है जॉलेस वर्टिब्रेट है। कौन? ये क्वेश्चन आएगा, जॉलेस वर्टिब्रेट, अग्न्याथा, उसमें से क्लास साइक्लोस्टोमेटा। और दोस्तों दीज आर द वर्टिब्रेट विथ जॉ, वर्टिब्रेट्स विथ जॉ, कौन? दैट इज ग्न्याथोस्टोमेटा। तो 1 बाय 1 देखेंगे, 1 बाय 1 क्या फीचर है दोस्तों, अग्न्याथा और साइक्लोस्टोमेटा। आगे बढ़ते हैं, इज दैट क्लियर? ये क्लियर है यहां तक? इज दैट क्लियर? यस यस, इज दैट क्लियर? लक्ष द्या, काल वर्टिब्रेटा, अग्न्याथा, ग्न्याथोस्टोमेटा। नाउ आता 1 बाय 1 बोलूया, दॅट इज 2 मुद्दे अबाउट द अग्न्याथा। अग्न्याथा किंवा काय ह्याला नुसतं अन्याथा सुद्धा म्हणतात। ग्न्याथा मीन्स जॉ, तो ये जॉलेस वर्टिब्रेट है, इसके बारे में एक लाइन चाहिए, जॉलेस, जॉ इज एब्सेंट, जॉलेस वर्टिब्रेट है, जॉलेस वर्टिब्रेट। नंबर 1 पॉइंट। 3 फीचर इसके बारे में। नंबर 1 जॉलेस वर्टिब्रेट हो गया। नंबर 2 पॉइंट दैट इज दोस्तों नो एक्सोस्केलेटन, नो एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है, इनकी बॉडी एकदम स्मूथ होगी, स्केलेटन, नो एक्सोस्केलेटन। और एक चीज है दोस्तों इनके बारे में, दैट इज नो पियर्ड फिन्स, पियर्ड फिन्स आर एब्सेंट, फिश जैसे होते हैं पियर्ड फिन्स आर एब्सेंट। ना उनमें एक ग्रुप है दोस्तों जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, जिनका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, जिनका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। ओके, इसका एग्जांपल है साइक्लोस्टोमेटा। उसके बारे में कुछ एक
बनाता हूं मैं। नंबर 1 पॉइंट कुछ सी है दोस्तों, दीज आर, ये जो होते हैं दीज आर एक्टो, ये जो है ये साइक्लोस्टोमेटा क्या है, दीज आर दोस्तों एक्टो पैरासाइट होते, दीज आर एक्चुअली एक्टो पैरासाइट ऑन अदर फिशेस। ये सभी के सभी एक्टो पैरासाइट है ऑन अदर फिशेस। कौन? साइक्लोस्टोमेटा। सी से हम बात करेंगे, कितने सारे सी है इसमें। These are ectoparasite on other fishes. Parasite are the organism which are derive nutrition from the other host, ectoparasite. Number 2 point जो है दोस्तों यहाँ पे बात करें, that is they have दोस्तों circular and sucking mouth। कैसा माउथ है? Circular, MCQ, circular and sucking mouth is the feature। Sucking mouth, circular and sucking mouth विदाउट जॉ, और वो माउथ कैसा है? विदाउट जॉ है, एमसीक्यू। तो माउथ कैसा है? दूसरा सी आ गया, दैट इज सर्कुलर माउथ है। कैसा माउथ है? सर्कुलर माउथ। 5 सी है। पहला खुद सी साइक्लोस्टोमेटा, पहला खुद सी साइक्लोस्टोमेटा, दूसरा सी एक्टोपैरासाइट का सी, एक्टोपैरासाइट नो अदर फिशेस, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ है दोस्तों। नंबर 3 पे आएगा, दैट इज दोस्तों दे हैव, दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें कैसे दोस्तों? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, याद रखो। दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एनसीईआरटी के पॉइंट है। दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, दैट इज दे हैव दोस्तों कार्टिलेजिनस क्रैनियम एंड वर्टिबल कॉलम। कार्टिलेजिनस, इनका जो क्रैनियम है मींस ब्रेन बॉक्स, और वर्टिबल कॉलम कार्टिलेजिनस, क्रैनियम एंड वर्टिबल कॉलम है। एक्चुअली बोनी होना चाहिए ना, क्रैनियम एंड वर्टिबल कॉलम। ये कार्टिलेजिनस होता है इनमें, वर्टिबल कॉलम किनमें? इन साइक्लोस्टोमेटा में। ये 5 सी है, याद रखो। दीज आर द 5 सी। कुछ इंपॉर्टेंट अदर फीचर्स ऑफ दैट साइक्लोस्टोमेटा। नंबर 1 कुछ अदर फीचर्स लिखता हूं यहाँ पे दोस्तों। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कुछ अदर फीचर्स, दैट इज 6 to 15 pairs of gill slits for respiration। pairs of gill slits होते हैं, कितने हैं? 6 to 15 MCQ for respiration, for respiration MCQ। और important point दोस्तों, और important point, their body is without scale and paired fins। body is, their body, इनकी जो body होती है, body is स्मूथ होती है, विदाउट, बॉडी इज विदाउट। नंबर 1 स्केल, स्केल्स नहीं है, और बी पियर्ड फिन्स नहीं होती है, अनपियर्ड फिन्स आर देयर। बॉडी इज विदाउट दोस्तों, बॉडी इज विदाउट स्केल एंड पियर्ड फिन्स, पियर्ड फिन्स नहीं है। ओके, तो बॉडी स्मूथ होगी दोस्तों। कैसी बॉडी होती है? स्मूथ बॉडी होती है इनकी। बॉडी जो है दैट इज अ वेरी स्मूथ, याद रखो। तो विदाउट के लिए और एक शब्द यूज किया गया है दोस्तों, दैट इज डिवॉइड। विदाउट के लिए और एक शब्द यूज किया जाता है, दैट इज डिवॉइड। ये उसके फीचर है साइक्लोस्टोमेटा। नाउ और एक है दोस्तों, दे शो एनाड्रोमस माइग्रेशन। नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ दिस? दे शोज एनाड्रोमस माइग्रेशन। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। एनाड्रोमस माइग्रेशन मैं आपको समझाता हूं। एनाड्रोमस माइग्रेशन किसमें होता है? साइक्लोस्टोमेटा में। पेट्रोमाइजन लैम्प्रे मैगजीन हैगफिश, कोई लोग उसे टेरोमाइजन बोलते, नहीं रे बाबा, वो पेट्रोमाइजन ही है। एनाड्रोमस माइग्रेशन मींस ये मरीन होते हैं। ओके, दे आर मरीन, बट फॉर ब्रीडिंग उसके लिए शब्द यूज किया है स्पाउनिंग। फॉर स्पाउनिंग दे मूव टू द फ्रेश वाटर, lay their eggs there. Now that eggs get converted into larva and larva get converted to adult, so that metamorphosis occur। अरे बाबा, ते AIB कोण आहे? ते झोपून बघते बेटा, डोळे जातील रे तुझे। हा, आणि तुझं काय नाव आहे ते टाक बेटा। हा, तुझं काय नाव आहे ते टाक। AIB कोणी टाकले ते नाव? तुमचं काय नाव आहे त्या नावाने ऍड व्हा, आणि झोपून वगैरे बघू नका, आलं लक्षात?
डोळे वगैरे घालता ना तुम्ही तुमचे. मयूर तुम्ही जे सध्या शिकवायलात ना त्याच्यावर फोकस करा बेटा. सध्या जे चालू ना त्याच्यावर फोकस करा. हा पाठवतो तुम्हाला ते ट्यूब. जे मी जे सध्या शिकवायला ना त्याच्यावर फोकस करा. नाउ प्लीज पे अटेंशन. तो दोस्तों ये 5C ऑफ साइक्लोस्टोमेटा कैसे याद रखेंगे? 5C. नो एनाड्रोमस माइग्रेशन म्हणजे ये अडल्ट जो होते वो सी वॉटर में होते, मरीन वॉटर में. फॉर ड्यूरिंग ब्रीडिंग अंडे घालायच्या वेळेस ते फ्रेश वॉटर मध्ये जातात. तिथे फ्रेश वॉटर मध्ये अंडे घालतात, उसे कहते हैं स्पाउनिंग. फिर उस एग से बनता है लार्वा, लार्वा से बनता है अडल्ट. वो मेटामॉर्फोसिस भी फ्रेश वाटर में होता है और फिर वो अडल्ट दोस्तों रिटर्न आता है ओशियन में, और जो गया है उसकी डेथ वहीं पे उसकी डेथ होती है. इसे कहते हैं दोस्तों एनाड्रोमस माइग्रेशन. ये उसके ऊपर मैं आ जाऊंगा एनाड्रोमस माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट. जस्ट वेट. और पहले याद रखो ये पहला कॉन्सेप्ट, दैट इज दोस्तों दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ, याद रखो 5C क्या है? ऑफ 5C ऑफ दोस्तों साइक्लोस्टोमेटा. 5C ऑफ साइक्लोस्टोमेटा. खुद साइक्लोस्टोमेटा एक, एक्टोपैरासाइट ऑन अदर फिशेस 2, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ 3, विदाउट जॉ, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम 4, कार्टिलेजिनस क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम 5. और ये 2-3 पॉइंट. 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट फॉर रेस्पिरेशन. बॉडी इज विदाउट स्केल एंड पेयर्ड फिन्स, डिवाइड स्केल होते हैं, और एनाड्रोमस माइग्रेशन. नाउ आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनाड्रोमस माइग्रेशन. ये क्लियर है? दे बिलोंग टू क्लास, सॉरी डिवीजन अग्न्याता, क्लास साइक्लोस्टोमेटा. नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनाड्रोमस माइग्रेशन? क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ. एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या है? एनाड्रोमस माइग्रेशन, मान लो ये है दोस्तों मरीन वाटर. सपोज दिस इज एन मरीन वाटर है, ये है मरीन वाटर मान लो. नाउ ये है फिश, कोई भी फिश. चलो मान लो ये है अडल्ट. ना ये जो अडल्ट है दोस्तों ये माइग्रेट हो रहा है. ओके ये माइग्रेट हो रहा है फ्रॉम मरीन टू फ्रेश वाटर. दिस अडल्ट फिश माइग्रेट फ्रॉम मरीन टू कहाँ आ गया? फ्रेश वाटर में. किसके लिए? फॉर स्पाउनिंग के लिए फ्रेश वाटर में आ गया. मान लो यहाँ पे दोस्तों फ्रेश वाटर, यहाँ पे फ्रेश वाटर. ना वही फिश, ओके ये जो फिश है, ओके इसे पेक्टोरल फिन कहते हैं, और ये जो ऊपर वाले होते हैं इसे कहते हैं पेल्विक फिन्स. जसं हे पेक्टोरल गर्डल आहे आणि खाली पेल्विक गर्डल आहे. माउथच्या जवळचे पेक्टोरल फिन्स, टेलच्या जवळचे पेल्विक फिन्स, और इसे कहते हैं काउडल फिन्स. एटलीस्ट यू हैव टू नो द 3 टाइप ऑफ फिन्स. जो आगे वाले एंटीरियर साइड पे पेक्टोरल फिन्स, ये वाले पेल्विक, और ये जो टेल वाले काउडा म्हणजे टेल रे बच्चों, काउडल फिन्स म्हणजे टेल, ये पता होना चाहिए. फिन्स एट द टेल. नाउ ये है अडल्ट. उसने क्या किया दोस्तों? स्पाउनिंग मतलब अंडे देने. स्पाउनिंग के पर्पस ये माइग्रेट हुई है, और माइग्रेशन हुआ है दोस्तों, इसे कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन. एनाड्रोमस माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ फिशेस फ्रॉम मरीन वाटर टू फ्रेश वाटर, इसे कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन. माइग्रेशन ऑफ फिशेस फ्रॉम मरीन वाटर टू फ्रेश वाटर, स्पाउनिंग. तो इसने क्या दे दिए? इसने दे दिए दोस्तों यहाँ पे ये है एग्स. क्या है? मान लो व्हाट आर दीज आर द एग्स. दोस्तों ये है एग्स, अंडे दिले त्याने कुठं? फ्रेश वाटर मध्ये. नाउ ये जो अंडे है दोस्तों, नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लो ये है फ्रेश वाटर, ये है मरीन वाटर, ये है मरीन वाटर, ये है मरीन वाटर. ये कौन सा वाटर है? ये है मरीन वाटर. ओके ये है मरीन वाटर. ओके ये है मरीन वाटर. नाउ ये कौन सा वाटर है? मान लो ये है दोस्तों फ्रेश वाटर, ये है फ्रेश वाटर.
ये कौन सा वाटर है? ये फ्रेश वाटर। कोई बात नहीं। तो ये है
एग से बन गया लार्वा, लार्वा से बन गया अडल्ट फिश। ये सब फ्रेश वाटर में हो रहा है। और दोस्तों ये अंडे देने के बाद इनकी डेथ हो जाती है, दे गेट डाइड, ये मर जाएंगे। और फिर ये एग कन्वर्टेड टू लार्वा, लार्वा अडल्ट, और फिर ये लार्वा अडल्ट फिश फिर से यहाँ आ जाएगा। फिर से अडल्ट फिश दोस्तों कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कहाँ पे, मरीन वाटर में। यह है अडल्ट फिश। ओके, फिर कुछ दिनों बाद जब भी स्पाउनिंग का ब्रीडिंग का सीजन आएगा, अंडे द्यायची वेळ येईल, परत ते फ्रेश वॉटर मध्ये जाईल। जसं आपल्याकडं एखादी बाळंतीण असते, ठीक आहे, ती माहेराला जाते ना, 7 महिने झाले तर 7 महिन्यापर्यंत ती सासरी असते, नंतर 7व्या महिन्यापासून ती माहेराला जाते का, तर आईच्या घरी कमी काम आहे, आई काळजी घेईल चांगली, असं पहिलं लावलेलं आहे। आता तसं करत नाही कोणी, पण एक सांगायला तुम्हाला समजतंय। मायग्रेट करतात ना मुली, ओके, सासराकडनं माहेरला जातात, माइग्रेट करतात का नहीं, वैसे ही है यहाँ पे। ये यहाँ पे मरीन वाटर है, हाईली सलाइन है, सॉल्टी है, अच्छा नहीं है, फ्रेश वाटर अच्छा है। तो फ्रेश वाटर अच्छा है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट है, समझे, इसे कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है साइक्लोस्टोमेटा का। कुछ ऐसे फिशेज जिनमें कैटाड्रोमस माइग्रेशन होता है। कैटाड्रोमस मीन्स माइग्रेशन ऑफ फिशेज फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मरीन वाटर, ये होता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। और एनाड्रोमस किसमें है दोस्तों, इसमें होता है, किसमें, साइक्लोस्टोमेटा में। इन साइक्लोस्टोमेटा, यहाँ पे एक लाइन है दोस्तों, वही लिखता हूं, याद रखो, सगळं कळायला लागल, जरा लक्ष द्या, जस्ट वेट। ये जो होता है दोस्तों साइक्लोस्टोम जो होते हैं, साइक्लोस्टोम जो है, साइक्लोस्टोम्स आर मरीन, एक्चुअली दे आर मरीन, they are marine, but migrate to freshwater for spawning, migrate to freshwater for spawning, for spawning। now spawning म्हणजे अंडे देणे, spawning म्हणजे अंडी देणे, मराठी भाषा स्पाउनिंग, ब्रीडिंग, ओके। और उसका क्या होता है दोस्तों, फ्रेश वाटर में क्या होता है, ओके, आफ्टर ये जो होते हैं साइक्लोस्टोम, आफ्टर स्पाउनिंग दोस्तों, आफ्टर स्पाउनिंग दे डाई, उनकी डेथ हो जाएगी, दे डाई, एंड their larva metamorphosed means developed into adult, their larva are metamorphosed into adult in fresh water। कहां पे हो रहा है, in fresh water, ये मेटामॉर्फोसिस फ्रेश वाटर में ही हो रहा है दोस्तों। एंड दैट adult fishes or adult cyclostomes return to marine water, marine water। लक्षात ठेवा, हे असा कॉन्सेप्ट आपलं, कसं 2 महिन्यानंतर ती वापस येते, बाळंतपण झाल्याच्या नंतर ते अडल्ट होईपर्यंत तिकडच मेटामॉर्फोसिस होईल, आणि ते अडल्ट झाल्याच्या नंतर येतं, कारण की एवढा मोठा प्रवास करायचा असतो। सो ये दोस्तों दैट इज एनाड्रोमस माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट। This is a concept of anadromous migration. Now please pay attention. The concept of anadromous migration, वाह, जो चाहिए था वही है, YouTube भी मिल गया है, ओके। anadromous migration, anadromous migration, ये देखो मिल गया वीडियो, anadromous migration, see this, okay। anadromous migration, और उसका अपोजिट है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। उसका अपोजिट क्या है, कैटाड्रोमस माइग्रेशन। याद रखो, 2 चीजें होती है, मरीन टू फिश माइग्रेशन। अरे एक तो भी वीडियो होगा,
See this. Many types of fish migrate on a regular basis on time scales ranging from daily to annually or longer, and over distances ranging from a few A meters salmon, to a salmon fish. kilometers. Fish usually migrate to feed or to reproduce, but in other cases the reasons are unclear. Migrations involve migrations between the spawning surface to feed at night and sink into lower layers of the ocean by day. Some fish such as तुम्ही बघितलं असेल बघा ते भालू वगैरे ते खातात त्यांना. त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ बनवलाय. आता हे फेमस आहे बघा. डिस्कवरीवर तुम्ही बघितलं असेल बघा हे व्हिडिओ. एनाड्रॉमस मायग्रेशनचा. इट्स व्हेरी कॉमन. हे सॅल्मॉन फिश आहेत, बेसिकली मरीन फिश आहेत, पण दे गोज टू द फ्रेश वॉटर फॉर स्पाउनिंग. तसंच आहे, समजून घ्या बेसिक कॉन्सेप्ट. इथं तसे पाहिजे तसे क्लिअर व्हिडिओ नाही आहेत. दोन मायग्रेशन समजून घ्या. दॅट इज एनाड्रॉमस मायग्रेशन अँड कॅटाड्रॉमस मायग्रेशन. ओके, एनाड्रॉमस अँड कॅटाड्रॉमस मायग्रेशन. नाउ दोस्तों,
What is the concept of anadromous migration? Anadromous migration. Fish migration के दो टाइप है. Migration and fish migration के दो टाइप है. There are two type of fish migration. Fish migration के दो basic type है. Fish migration के दो basic type है. Anadromous and catadromous migration. Now, anadromous migration में दोस्तों, that is fish migrate means एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा. Migrate from marine water to fresh water. From marine to fresh water. Marine to fresh water. इसे कहेंगे दोस्तों, that is anadromous migration, especially for spawning. दूसरा है दोस्तों, that is catadromous migration. Now what is meant by catadromous migration? So catadromous migration means that is fish migrate from fresh water to marine water. Fish ये temporary period के लिए जाते हैं. Fish migrate from fresh water to marine water. इसे कहते हैं catadromous. Fresh water to marine water. That is what is दोस्तों, याद रखो कैटाड्रोमस माइग्रेशन. तो बस यह है साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, बस इतना ही साइक्लोस्टोमेटा के बारे में. ओके, चलो. असतील खूप सारे व्हिडिओ असतील, पण ते बघायला पाहिजे फिश मायग्रेशनच्या अंडर, तुम्ही बघू शकताय. सो ये इसके एग्जांपल है पेट्रोमाइजन लैम्प्रे मैगजीन हैगफिश. तो हैगफिश जो है दोस्तों, एक याद रखो वो मोनोसियस है. ये जो हैगफिश है सिलेबस में, इसके बहुत सारे एग्जांपल है. वो मोनोसियस है, मैंने ऑलरेडी लिख के दिया है. तो मंडे को तो लेक्चर नहीं है, एक्चुअली मंडे को छुट्टी है. तो मिलते हैं ट्यूसडे, और ट्यूसडे बात करेंगे कॉन्ड्रिक्टाइस ऑस्टिकटाइस, साथ में ही दोनों एक साथ बात करेंगे. फिर एम्फीबिया, बर्ड और रेप्टाइल, और फिनिश टॉपिक. फिर नया टॉपिक, दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे. ठीक है, थैंक यू. चलो 3-4 दिवस आहे आणखी. बाय. आज डीपीपी मध्ये काय येणार? आज डीपीपी मध्ये हे येणार सायक्लोस्टोमेटा. ओके, सायक्लोस्टोमेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, अप टू दैट. ठीक है, चलो. जम्बोची डेट 5 सप्टेंबर आहे. जम्बोची डेट 5 सप्टेंबर आहे. जम्बोचे टॉपिक सेकंड बॅचला, पहिल्या बॅचला आहेत बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. पहिल्या बॅचला जेवढे झालेले तेवढे सगळे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बॅच 1 ला डायजेशन, ऍब्झॉर्प्शन, ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस, बॉडी फ्लुइड अँड सर्क्युलेशन. आणि इकडे असतील दॅट इज पीके एके, प्लांट किंगडम, ॲनिमल किंगडम. असे कळलं, हे बेसिक टॉपिक आहेत. आता इकडं एके संपत आलाय, तिकडे बॉडी फ्लुइड अँड सर्क्युलेशन संपत आलाय. आता याच्यानंतर दुसरे 2 टॉपिक होतील, ते पण येऊन जातील. ओके, पुढच्या आठवड्यापर्यंत नवीन टॉपिक सुरू होतील, ह्याच्या पुढच्या आठवड्यापर्यंत. ठीक आहे, चला थांबूया. मोनोसियस पॉइंट म्हणजे हॅगफिश जे असतात, पेट्रोमायझन, लॅम्प्रे, मिक्झिन हॅगफिश. हॅगफिश आर मोनोसियस, मीन्स बोथ मेल अँड फिमेल सेक्स ऑर्गन प्रेझेंट इन सेम इंडिव्हिज्युअल. सो हॅगफिश आहे. ओके, पेट्रोमायझन, लॅम्प्रे, मिक्झिन हॅगफिश. कुठतरी एच फॉर हॅगफिश, एच फॉर हर्मॅफ्रोडाइट आहे तो. ठीक आहे, कालचं